Okay, very welcome to all of you students. So from where we have stopped last time, so now today we are going to do problems that are dependent on fundamental identities. So please write down topic 2 trigonometry 1 we are doing, or sometimes also known as trigonometric functions. तो पहले fundamental identities लिखते हैं सर. Write down the heading. Fundamental identities. Now, these fundamental identities we have also learnt in 10th standard. So, like first fundamental identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second fundamental identity, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And the third fundamental identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है. So आज जो हम problems करने वाले हैं, they are dependent on fundamental identities, as well as students we are also going to use the reciprocal identities. वो reciprocal identities भी मैं आपके reference के लिए लिख देता हूँ. Write down reciprocal identities. The first reciprocal identity, sin theta is nothing but 1 by cosec theta. या cosec theta is 1 by sin theta, कैसे भी लिखो आप. Second one is that cos theta is 1 by sec theta. And third reciprocal identity है tan theta is nothing but 1 by cot theta. They are reciprocals of each other, so they are called as reciprocal identities. So please note down this: fundamental identity, reciprocal identity. Then we know quadrant system. We have done it last time. कौन से quadrant में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो राइट डाउन, आपके रेफरेंस के लिए सारी चीजें लिख देता हूं. साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions. See, all this is very necessary before we start solving the problems. Okay. So now, if you observe students, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. In first quadrant, all functions are positive, and all school to college. Okay, chalo, draw this for your reference. Now we are going to require quadrant system also. ये 0 degrees है, this is 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree, and एक rotation जब पूरा हो जाता है तो this is 360 degree. Now we all know कि angle जब 0 degrees और 90 degrees के बीच में होता है तो it is first quadrant. When the angle is between 90 degree and 180 degree, it is second quadrant. When the angle is between 180 degree and 270 degree, it is in third quadrant. And when the angle is between 270 degrees and 360 degrees, the angle is said to lie in fourth quadrant. Angle in a quadrant. First quadrant में all the functions are positive. Second quadrant में S मतलब sin theta and its reciprocal cosec theta are positive. देखो मैंने आपको नोटबुक में लिख के दिया है already. Third quadrant में T stands for tan theta and its reciprocal cot theta are positive. In the third quadrant, rest all functions are negative. And in the fourth quadrant, C stands for cos
and its reciprocal sec are positive in the fourth quadrant, the rest all are negative. So please note down this. जैसे ये मैंने these two things I have already given it to you in the previous lecture. This is new to us. मतलब ये भी 10th standard में हमने किया हुआ है, ठीक है? So now today we are going to solve the problems that are dependent on this thing. ठीक है? चलो, please make a note of this, then we'll move ahead. Okay, students. So let us move on to exercise 2.1. We have stopped with 2.1 last time, but ये जो fundamental identity वाले problems है, they are present in both exercise number 2.1 also and exercise number 2.2 also. तो पहले 2.1 के problems करेंगे जो fundamental identity पे और ये concept के ऊपर based है. Then we'll move on to exercise 2.2. So question 7. Cos theta का value is given as 12 by 13. Theta is between 0 to pi by 2. So this is 0 to pi by 2. Means theta lies in first quadrant. दिया है. Then we want to find out the value of these two trigonometric expressions. So चलो, let us start solving. Solution for problem number 7. So let us first write down what all things are given. जैसे लिखिए given. So what is given first of all, students? लिखो cos theta का value is 12 by 13. This is given. आगे आप लिख लो where theta lies in first quadrant. दिया हुआ है, ठीक है ना? Now recollect this. You can ये जो थीटा वो देगा आपको, वो या तो डिग्री के फॉर्म में भी दे सकता है या रेडियन के फॉर्म में भी दे सकता है. तो 0 डिग्री means this is nothing but 0 radian. 90 degree means it is pi by 2 radian. 180 degree means it is pi radian. 270 degrees means it is 3 pi by 2 radian. ठीक है? And 360 degrees means it is 2 pi radian. So अभी theta is between 0 to pi by 2. Theta lies in first quadrant. First quadrant में all the functions are positive. ठीक है? तो अभी cos theta है. Problem solve करने के लिए हमें sin theta का value चाहिए. So we will be using the fundamental identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So write down on the next line. लिखिए आप ऐसा. We know that. What we know? Write down sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore, from here, sin square theta is nothing but equal to 1 minus cos square theta होता है by shifting cos square theta because we want the value of sin theta. So therefore, sin square theta is equal to 1 minus. Now let us substitute value of cos theta over here. तो cos theta का value है 12 by 13. तो function का square है तो value का भी square हो जाएगा. Therefore, from here what do we obtain, students? So sin square theta is equal to 1 minus. This is 144 by 169. Let us take LCM. 169 minus 144. So that is nothing but 25 by 169 sin square theta. So therefore, from here, sin theta का value will be plus minus 5 by 13 आएगा, है ना? Both values plus minus we'll have to write down, but plus वाला accept होगा कि minus वाला accept होगा, that will depend on the quadrant. Now what is given to us? Theta lies in first quadrant. In first quadrant, all the functions are positive. So sin theta का negative value discard हो जाएगा. So write down. Therefore, sin theta का जो acceptable value है, that is 5 by 13, and put a box over this. Why? Reason already written. हम starting में लिख चुके हैं. Theta lies in first quadrant. इसीलिए सिर्फ sin theta का पॉजिटिव वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा, नेगेटिव वाला वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड.
फिर भी अगर आपको चाहिए तो लिख लो रीजन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो बार वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर दिया है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो चलो, व्हाट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर a पार्ट, इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो चलो लेट अस सॉल्व, स्ट्रेट डाउन a sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू इज रिक्वायर्ड। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin थीटा का वैल्यू डालो 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 25/169 माइनस cos थीटा का वैल्यू डालो, cos थीटा का वैल्यू है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर, तो दैट इज 144/169 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 5/13 इंटू 12/13। चलो रे डाउन, नाउ डू कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफाई। एकदम सिंपल है प्रॉब्लम्स। देखो अब टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 2.1 के बाद दिए हैं, बट प्रॉब्लम पहले ही पूछ लिया है, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। आई हैव गिवन यू फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज, देन वी आर डूइंग द प्रॉब्लम। Since by chance if you don't know fundamental identities, for those students I have written them already। ये सारा सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो लेट्स कैलकुलेट। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंस तो ये अपॉन में 169 आएगा। नाउ 25 माइनस 144 तो कितना आएगा, माइनस 119 माइनस 119 अपॉन 169 आएगा, अपॉन 13 डिनोमिनेटर में भी 169 आएगा, 10 और ये 120। ठीक है, तो 169 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू कैन से, तो इसका जो वैल्यू है यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका वैल्यू इज -119 अपॉन 120। दैट्स इट। तो ए पार्ट इज ओवर। ये किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का ये वैल्यू है। चलो प्लीज नोट डाउन, माइनस 119 अपॉन 120। ए पार्ट इज ओवर, प्लीज मेक अ नोट। फिर हम बी पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब बी पार्ट क्या फाइंड करना है, 1/tan स्क्वायर थीटा ना। तो चलो नाउ बिफोर वी सॉल्व फॉर द बी पार्ट, हमें tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो राइट डाउन, वी नो दैट tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, 5/13, तो इट इज 5/13, और cos थीटा का वैल्यू है 12/13, तो दिस इज 5/12। 13 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू है 5/12, तो देयरफॉर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन, ये tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो 5/12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर इज 144/25। दैट्स इट। तो ये 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 144/25। प्रॉब्लम इज ओवर। With this we have finished the 7th question of exercise 2.1. Please note down. Okay students, so exercise 2.1 ka, let us move on to question number 9. What it says, find the other trigonometric functions if, first example, cos theta का value -3/5 दिया है
and 180 degree less than theta and theta is less than 270. So theta is between 180 and 270 means it is third quadrant. ये देखो यहाँ पे 180 और 270 के बीच में थीटा, so it is third quadrant. Now in third quadrant only two functions are positive. एक तो tan function positive होता है और उसका रेसिप्रोकल cot function positive होता है, rest all are negative. तो देखो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है नेगेटिव वैल्यू. चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. Solution for the example given. What is given to us? Cos theta का वैल्यू is -3/5. एक वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है. रेड ऑन वेयर फॉर योर रेफरेंस ऐसा लिखो, वेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है या मालूम होना चाहिए कि ओनली टू फंक्शंस आर पॉजिटिव, tan and cot, rest all are negative. So cos theta is known to us. Now we want the remaining 5 functions. So let us first find out sin theta. देखो sin cos पता है तो बाकी के सारे functions जो है वो अपने आप मिल जाते हैं. Rest functions we can easily obtain, है ना. So let us use fundamental identity. So write down, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो चलो लिखो, therefore sin square theta is nothing but equal to 1 minus cos square theta. So that is nothing but equal to 1 minus cos theta का वैल्यू आप यहाँ पे डालो तो -3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. Now initially I am writing it down, later on I will skip the steps. So therefore sin square theta is further equal to what? 1 minus इसका स्क्वायर, so that is nothing but 9/25. LCM ले लो आप इसका, तो 25 minus 9/25, so that is nothing but equal to 16/25. So sin square theta is 16/35. So therefore sin theta will be plus minus 4/5. बट या तो पॉजिटिव होगा sin थीटा या नेगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में sin फंक्शन इज नेगेटिव. So write down, therefore sin थीटा का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है that is -4/5. Put a box over this. Reason we have already written. Theta lies in third quadrant. हम पहले लिख चुके हैं, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. BC थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल cot फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं. तो चलो sin थीटा तो मिल गया, cos थीटा भी मिल गया. तो therefore tan थीटा is nothing but sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है. सो sin अपॉन cos, sin थीटा का वैल्यू इज -4/5, cos थीटा का वैल्यू इज -3/5. so this is nothing but 4/3. tan थीटा का वैल्यू भी मिल गया हमें 4/3. तो अभी बाकी के फंक्शंस इजीली फाइंड हो सकते हैं. चलो राइट डाउन दिस. नाउ देखो यहाँ पे इसको भी, इसके ऊपर भी बॉक्स डाल दो आप. cos थीटा का वैल्यू तो उसने दिया हुआ था, sin थीटा tan थीटा हमने फाइंड कर लिया. अब देखो cos थीटा मालूम है तो हमें sec थीटा फाइंड करना है, तो sec थीटा इज 1/cos थीटा ना. तो राइट डाउन, देयरफॉर इसी के आगे, हाँ इसी का कंटिन्यूएशन. तो देयरफॉर sec थीटा इज 1/cos थीटा. या therefore नहीं डालना है तो ऐसे लिखो, we know that. You can write down, therefore नहीं डालना है तो write down, we know that cos theta is 1/sec theta. So that is nothing but equal to 1/, yeah, they are reciprocals of each other ना. अभी cos theta का वैल्यू डाल दो -3/5. Now you write down, therefore sec theta का वैल्यू is -5/3.
and put a box over this. क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -3/5 है, -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3 होता है. Now sin थीटा का रेसिप्रोकल इज cosec थीटा. ऐसा लिखो ऑन द नेक्स्ट लाइन, वी नो दैट. ठीक है, चलो ये आप इसको ऐसा करो, लेट अस बाइफरकेट दिस. मतलब ये स्टेप के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. वी नो दैट cosec थीटा is 1/sin थीटा. So that is 1/sin थीटा का जो वैल्यू है that is -4/5 and -4/5 का रेसिप्रोकल is nothing but -5/4. ये sec थीटा का वैल्यू है. And tan थीटा का रेसिप्रोकल is cot थीटा. So write down, we know that cot theta is 1/tan theta. So that is 1/tan theta का value is 4/3. So this becomes 3/4. तो देखो सारे फंक्शंस मिल गए हमें. cos थीटा का वैल्यू दिया था, sin थीटा निकाल लिया, tan थीटा मिल गया, sec थीटा मिल गया, cosec थीटा मिल गया, cot थीटा मिल गया. That's it. Problem is over. लास्ट में आपको लिखना है तो hence you can write down sin theta, cos theta, tan, सारे फंक्शंस के वैल्यूज लास्ट में लिख दो और इवन यू कैन स्टॉप इट ओवर हियर. प्रॉब्लम इज ओवर. अब देखो इसमें से tan थीटा पॉजिटिव है एंड cot थीटा इज पॉजिटिव. रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. देखो cos फंक्शन नेगेटिव है, sin फंक्शन नेगेटिव है, sec फंक्शन इज नेगेटिव, cosec फंक्शन इज नेगेटिव. तो कंसेप्ट ओनली सेज कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. राइट डाउन. हाँ वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बट फर्स्ट एग्जांपल था तो मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया. अदरवाइज sec थीटा यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन -5/3. cos थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दो तो sec थीटा मिल जाता है. नोट डाउन. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर. और एक एग्जांपल करेंगे इसमें. Okay students, so let's move on to the fourth example. Question 9 में what is given? Tan x का value is -5/12 and x lies in fourth quadrant. अच्छा, now instead of giving you directly x lies in fourth quadrant, पता है आपको वो ऐसा भी दे सकता है. This same thing can be given this way also. ऐसा लिख लो, और 270 degree is less than theta and theta is लेस देन 360. तो इसका भी वही मीनिंग हो गया कि इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा, या वो रेडियन फॉर्म में भी दे सकता है. 3π/2 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 2π. तो ये तीनों में से कुछ एक भी दिया है ना. x, चलो थीटा तो नहीं, अभी x है ना, तो यहाँ पे वो x दे देगा. It will give us x. थीटा हो, x हो, y हो, whatever it is, you know. So right now he has given x lies in fourth quadrant. वो ऐसा भी दे सकता है x is between 270 to 360, x is between 3π/2 to 2π. अगर थीटा रहेगा तो थीटा देगा वो. नोट डाउन, ये भी लिख लो आपके रेफरेंस के लिए. नाउ tan x का वैल्यू पता है तो बाकी के फंक्शंस का वैल्यू निकालना है. तो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 4. तो फर्स्ट थिंग तो गिवन आएगा. तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? तो tan x का वैल्यू दिया है हमें -5/12 एंड व्हाट इज गिवन वेयर x लाइज इन, वो भी लिख लो आप, वेयर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and its reciprocal sec is positive, rest all are negative. ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, c means cos, तो cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं. बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन थीटा एनीवेयर. सब जगह पे x आएगा. प्रॉब्लम में x है तो एवरीवेयर वी आर गोइंग टू राइट डाउन x, थीटा नहीं यूज होगा. So let us use this fundamental identity. So write down, लिखो, we know that 1 plus
tan square x is equal to sec square x. थीटा है आइडेंटिटी, ठीक है, बट अभी हम प्रॉब्लम में x लिखेंगे क्योंकि tan x दिया है. तो therefore 1 plus tan x, इसका वैल्यू इधर डालो तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर विल बी 25 by 144 and this is nothing but equal to sec square x. So therefore sec square x is equal to 144 plus 25 is 169. 169 by 144, ये sec square x का वैल्यू है. So therefore how much will be value of sec x? So sec x का वैल्यू will be plus minus 13 by 12. तो therefore sec x का जो acceptable value है, तो sec x का acceptable value will be what? It is fourth quadrant. Fourth quadrant में sec function positive होता है, so it is 13 by 12 and put a box over this. Reason लिखने की जरूरत नहीं है. Reason we have already written, x lies in fourth quadrant. तो tan x का वैल्यू तो उसने हमें दिया है ऑलरेडी. sec x का वैल्यू हमें मिल चुका है. Now what we want, the remaining functions. ठीक है, so doesn't matter, let us find out, but write down till here, फिर हम आगे बढ़ेंगे. So I hope everyone must have written till here, students. अब देखो, चलो let's continue ahead. तो tan x और sec x का वैल्यू है. Now since sec x का वैल्यू 13 by 12 है, तो यहाँ से cos x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम. सॉरी, let us find out value of cos x. So what will be value of cos x? So it will be 12 by 13. तो cos x का भी वैल्यू मिल गया हमें. ठीक है. Now what is going to happen is that now we need sin and cosec. अभी देखो इसमें दो ऑप्शन है. First is that we can use fundamental identity. sin square x plus cos square x is equal to 1 यूज करके हम वहां से sin x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदियर हो जाएगा. Now let us use one trick over here. Trick means वही फंडामेंटल ही है, वो बेसिक्स ही है, थोड़े डाउन. आगे आप लिखिए, we know that, ऐसा लिखो. What do we know, students? We know that tan x is nothing but sin x by cos x, ना? So therefore from here tan x into cos x is nothing but equal to sin x, ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करोगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा ना. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी वी विल यूज दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब देखो tan x का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है -5 by 12 है, एंड cos x का वैल्यू इज 12 by 13, तो यही हमें देगा sin x का वैल्यू. So therefore students, what is sin x का वैल्यू? So sin x का वैल्यू is nothing but -5 by 13. अब sin x का वैल्यू -5 by 13 है, तो cosec x का वैल्यू will be nothing but -13 by 5. तो sin x का भी वैल्यू मिल गया, cosec x का भी वैल्यू मिल गया. अब क्या बच गया? cot x है ना, sin cos sec cosec tan सब है, and therefore cot x is nothing but 1 by tan x, तो इसका रेसिप्रोकल, so that is nothing but -12 by 5 हो जाएगा. cot x का वैल्यू भी मिल गया हमें. That's it, problem is over. ठीक है. So you can remember this, tan x into cos x is nothing but equal to sin x होता है. आप कैसे भी करो. सी ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहले tan x दिया है ना, तो पहले आप cot x लिख लो. tan x का वैल्यू दिया है, स्टार्टिंग में cot x लिख लो आप, तो tan और cot पहले ही मिल जाएगा. tan तो दिया था, cot पहले ही मिल जाएगा. देन यू यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी, फाइंड आउट sec, देन यू फाइंड आउट cos, and then you find out sin and cosec. So that order is not important.
आप कोई भी फंक्शन पहले फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बट ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन मेनी टाइम स्टूडेंट है ना एक्स के जगह पे थीटा लिखता है, बोलते सर आंसर तो सेम है। अरे ऐसा नहीं चलता है, एक्स दिया है तो सब जगह पे एक्स लिखना पड़ेगा, वाई दिया है तो वाई लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन यूज किया, अगर कैपिटल ए दिया है tan ऑफ ए, तो फिर कैपिटल ए नोटेशन वॉट एवर इट इज यूज, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, कैपिटल ए तो कैपिटल ए, कैपिटल बी तो कैपिटल बी, वॉट एवर इट इज गिवन यू हैव टू यूज दैट, नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। Okay students, so with this we have finished off with exercise 2.1। जो प्रॉब्लम इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो 2.1 में से हमने जो वो रिमेनिंग पार्ट था वो छोड़ा था, so that we have done it। Now note down this, now we'll move on to exercise number 2.2 start करेंगे हम। Okay, sit down। Okay students, so please write down exercise number 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, now what is given, if 2 sin A is equal to 1 and which is equal to root 2 cos B, A is between pi by 2 and pi and B is between 3 pi by 2 and 2 pi, and we want to find out value of this expression। ठीक है, चलो let us begin with the solution। Now this problem can be asked for 3 to 4 marks, 3 से 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। चलो let us begin with the solution for this example। Now what is given to us, they both are equal to 1 ना, so what is given, 2 sin A is equal to 1 ना, तो ऐसा लिखो given 2 sin A is equal to 1, और क्या दिया है, ए कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 2 और पाई के बीच में है, तो सी पाई बाय 2 एंड पाई मींस इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऐसा लिखो वेयर ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ए लिखना है हमें, करेक्ट, प्रीवियस एग्जांपल एक्स था तो एक्स लिखा, ए तो ए, तो देयरफॉर फ्रॉम हियर साइन ए का वैल्यू इज नथिंग बट 1/2। अब देखो हमें चाहिए cos a का वैल्यू, तो वी विल यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी। So write down, we know that, okay, what do we know, sin square a plus cos square a is equal to 1, so therefore from here cos square a is nothing but equal to 1 minus sin square a, so that will be nothing but equal to 1 minus sin a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/2 का स्क्वायर, so that is 1/4। तो therefore students cos square a का वैल्यू LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा, तो therefore from here cos a का वैल्यू is plus minus √3/2, cos a का वैल्यू प्लस माइनस आएगा, बट a lies in which quadrant, a lies in second quadrant। देखो कंडीशन दिया है उसने अपने को। Now since a lies in second quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है, therefore what is value of cos a students, तो value of cos a is nothing but minus √3/2। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक फंक्शन, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। So students cos a का वैल्यू minus √3/2 है, I was saying only second quadrant में due to connectivity issue there was, तो second quadrant में sin फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो cos a का वैल्यू minus √3/2 आ गया। अच्छा, now cos a का वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम tan a का भी वैल्यू चाहिए, so write down therefore tan a is nothing but it is sin a upon cos a,
तो साइन ए का वैल्यू है 1/2, कॉस ए का वैल्यू है -√3/2, तो दिस इज -1/√3. दिस इज वैल्यू ऑफ tan ए. चलो नाउ सॉल्व एंड सिमिलरली लेट अस सॉल्व फॉर cos b. अच्छा cos b तो दिया है, cos b इज ऑलरेडी गिवन, sin b निकालना पड़ेगा. नेवर माइंड, करते हैं. ठीक है, तो राइट डाउन नाउ गिवन cos b का वैल्यू. नाउ यहां से cos b का वैल्यू क्या दिया है हमें, 1/√2 है ना. cos b तो चलो है दिया, tan b तो चाहिए, tan b, but if we want tan b we will require sin b. So write down, we know that sin square b plus cos square b is equal to 1. फंडामेंटल आइडेंटिटी. अभी b लिखना है, a था a लिखा, b था b लिखा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, whatever it is, एंगल जिससे डिनोट किया है. So therefore from here sin square b is nothing but equal to 1 minus cos square b. So that is 1 minus इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. 1 minus 1/2 is 1/2. So therefore from here sin b का वैल्यू is plus minus 1/√2. बट अभी आप देखिए क्या दिया है उसने, b lies in फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो ये इसको मैं थोड़ा ऐसा बाइफरकेट कर देता हूँ. b lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप लिख लो आपके रेफरेंस के लिए, यहाँ पे cos b दिया है ना, तो b lies in फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ऐसा लिख लो आप. Now since b is lying in the fourth quadrant में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल sec फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो इसीलिए यहाँ से sin b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इट विल बी -1/√2. तो दिस इज एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ sin b, नेगेटिव वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब tan b निकालेंगे. Therefore tan b का वैल्यू is nothing but students sin b upon cos b. sin b का वैल्यू है -1/√2 एंड cos b का वैल्यू है 1/√2. तो दिस इज नथिंग बट -1 tan b का वैल्यू. ठीक है, चलो राइट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. But we need to find out value of this trigonometric equation ना, तो इसको कंसिडर करके फिर सारे वैल्यूज डालेंगे हम. लेट अस कंसिडर दिस नाउ. तो चलो स्पेस, ठीक है, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं. तो therefore we want value of tan a. देखो tan a सामने है, tan b, cos a cos b. चलो ठीक है, तो what I'll do, I will continue from the top. चलो अब तब तक यहाँ तक लिख लो, मैं इसी साइड यहीं पे कंटिन्यू करूंगा इसको. इज इट डन टिल हियर? तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये गया यहाँ से. So write down, therefore tan A plus tan B upon cos A minus cos B. ठीक है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो tan A का वैल्यू, तो tan A का वैल्यू क्या आया था हमें, राइट डाउन -1/√3. tan B का वैल्यू
tan b का वैल्यू इज -1 अपॉन cos a का वैल्यू, देखो cos a का वैल्यू मैंने सामने रखा है -√3/2 एंड cos b का वैल्यू, ठीक है, cos b का वैल्यू इज नथिंग बट 1/√2, ठीक है, से डाउन। चलो नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम आफ्टर दिस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। So now let us take LCM and simplify. अच्छा, one more thing we'll do at the same time, हम ये दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे या बाद में भी कॉमन निकाल सकते हैं। चलो लेट अस डू इट। तो ये हो जाएगा -1 -√3 होल डिवाइडेड बाय √3, ये न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया, ठीक है। -√3 इंटू √2 इज √6, √6 -2 अपॉन 2√2, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल दिस बिकम, तो रेसिप्रोकल माइनस साइन कॉमन, तो माइनस दिस इज 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू ये 2√2 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज √6 प्लस 2, दिस इज व्हाट वी गेट। बस नाउ सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहिए तो √3 मल्टीप्लाई कर दो और else keep it as it is in multiplication, write down, करो आगे सिंप्लीफाई करो, स्टार्ट डूइंग। So what's the final answer स्टूडेंट्स, मिला आपको? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 2√2 into bracket 1 plus √3 remaining same, and this is √3 into bracket √6 plus 2, ऐसा ये हमारा फाइनल आंसर है। वैसे अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में दिस इज नॉट द सेम आंसर, ये आप बोलोगे कि सर टेक्स्ट बुक में पीछे डिफरेंट आंसर दिया है। अच्छा, अगर आपको पीछे वाला आंसर चाहिए, इफ यू वांट द सेम आंसर, तो इसमें अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई टेल यू व्हाट, इफ यू वांट विल डू दैट आल्सो। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर वो भी बता देता हूँ। देखो सी इन दिस प्रॉब्लम उसने क्या बोला अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वही सेम आंसर हमें लिखना है, इज नॉट नेसेसरी। प्रूव दैट बोला है क्या उसने? नो, ही हैज नॉट सेड प्रूव दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो दिस इज सफिशिएंट। बट स्टिल आपके रेफरेंस के लिए मैं कर देता हूँ। स्टूडेंट लोग को लगता है अरे सर पीछे आंसर अलग दिया है, अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो अलग दिखेगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन स्टॉप योर आंसर एट दिस पोजीशन आल्सो, बट चलो लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो देयरफॉर लिखो tan A plus tan B. See, problem selections of the textbook are not at all in a proper order, you know, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम के हिसाब से जाता ही नहीं हूँ। अब पहले ये रूट वाला इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया उसने, ठीक है। बट चलो एनीवेज वी हैव डन द सिंपल एग्जांपल, डजंट मैटर। नाउ लेट न्यूमरेटर रिमेन सेम, 2√2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में √3 रिमेनिंग सेम। नाउ चेक, ये जो √6 है ना, दिस √6 इज √3 into √2 and this 2 is √2 into √2, देखो ऐसा हम लिख सकते हैं। This can be further simplified in this manner, so this will be further equal to 2√2 into 1 plus √3 into √3 into, ये दोनों टर्म में से √2 कॉमन आ जाएगा। अब जब ये दोनों टर्म में से √2 कॉमन आ जाएगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, √3 प्लस √2 बचेगा। अब ये √2 गया, so what is left out now? So we are left out with 2 into bracket 1 plus √3 upon √3 into bracket √3 plus √2, बस यही आंसर है। और आगे सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो जाएगा 2 plus 2 √3, √3 into √3 is 3 plus √6, ये किसका वैल्यू है? तो इट इज
tan A plus tan B अपॉन cos A minus cos B का वैल्यू है. So if you stop over here, absolutely no problem, आपके marks cut नहीं होंगे. And even if you continue and solve it till here, then also no problem. Okay? So please note down. This example is over. Okay, so let us move on to the next question. Question number 2. ये given है sin A by 3 is equal to sin B by 4 is equal to 1 by 5. A and B are angles in the second quadrant. Then we have to prove that 4 cos A plus 3 cos B का value is equal to -5. चलो simple example है. Write down solution for the problem. Now this is the given condition. So sin A by 3 is equal to 1 by 5 ना. तो लिखो given according to the given condition क्या दिया है, sin A by 3 का value is 1 by 5. So therefore from here sin A का value will be 3 by 5. They are all equal ना, तो हम इनको इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे है ना. therefore sin A is 1 by 5. तो sin A का वैल्यू 3 by 5 आ जाएगा. ठीक है ना. तो ऐसा भी लिख सकते हो given या we have this value, therefore we get this. अच्छा A lies in, ठीक है फाइन. चलो sin B भी फाइन कर लेते हैं. we have sin B by 4 is equal to 1 by 5. So therefore from here sin B का value is 4 by 5 where A and B lies in second quadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो sin A का वैल्यू मिल गया sin B, बट हमें चाहिए cos A और cos B. तो लेट अस यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी. So write down we know that. ठीक है. चलो लेट अस बिगिन. sin square A plus cos square A is equal to 1. So therefore cos square A is equal to 1 minus sin square A मिलेगा. Therefore cos square A is equal to 1 minus sin square A, इसका square. So that is 9 by 25. So that will give us 16 by 25. So therefore students cos A का जो value आएगा that will be plus minus 4 by 5. But जो finally cos A का acceptable वाला value होगा वो क्या आएगा वो लिखो. चलो cos A का acceptable value. A lies in which quadrant? A lies in second quadrant. Second quadrant में cos function नेगेटिव होता है. इट इज -4 by 5. cos A का वैल्यू मिल गया हमें. अभी हमें चाहिए cos B का वैल्यू. तो यूज द फंडामेंटल आइडेंटिटी वंस अगेन. ठीक है. तो राइट डाउन वी नो दैट. आप इस लिखिए वी नो दैट sin square B plus cos square B is equal to 1. अभी B लिखना है. प्लीज यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन थीटा एनीवेयर. यहाँ पे A भी नहीं लिखोगे, थीटा भी नहीं लिखोगे. फंडामेंटल आइडेंटिटी नो डाउट थीटा में है, बट थीटा में उसको यूज नहीं करना है, B लिखना है. So therefore from here cos square B is 1 minus sin square B. That is further equal to what? 1 minus 16 by 25. इसका स्क्वायर हो जाएगा वहां पे. So therefore cos square B is 9 by 25. So therefore cos B का value is plus minus 3 by 5.
but B lies in which quadrant? B is also in second quadrant. दोनों angles A and B are in second quadrant. दोनों अलग अलग angles है. So therefore cos B का जो acceptable value है, that is nothing but -3/5. Reason is already written. B lies in second quadrant. अब cos A cos B का वैल्यू मिल गया ना. Consider LHS and obtain RHS. प्रूव करना है ना. तो consider left hand side. So what is the left hand side? So it is 4 cos A plus 3 cos B. हाँ, वो प्रीवियस वाला एग्जांपल थोड़ा जरा रूट और लेंथियर वाला, ये सिंपल है. तो 4 into cos A का वैल्यू, तो cos A का वैल्यू is -4/5 plus 3 times of cos B का वैल्यू is -3/5. So that's equal to how much? Solve करो. This is -16/5 and this is -9/5, which is -25/5, which is nothing but -5. So LHS is equal to RHS. यही तो प्रूव करना था. 4 cos A plus 3 cos B is equal to -5. Problem is over. So you can end up this way. Therefore 4 cos A plus 3 cos B is equal to -5. हो गया. प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, प्रूव करने को दिया है उसने. अच्छा, यही सेम क्वेश्चन वो फाइंड करने को भी बोल सकते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos A plus 3 cos B. तो इक्वल टू -5 वो देगा नहीं. he may give us this way also. Find the value of 4 cos A plus 3 cos B. तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नोट डाउन. प्रॉब्लम इज ओवर. ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप. व्हाट इज सेइंग? if tan theta का value is 1/2 given, then we have to evaluate this expression. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है ना, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, tan थीटा का वैल्यू जरूर दिया है, बट हियर इट इज नॉट मेंशन दैट थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, नहीं मालूम. हाँ, बट इतना जरूर मालूम है कि tan थीटा पॉजिटिव है. tan थीटा पॉजिटिव है मींस थीटा लाइज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है ना. बट प्रॉब्लम विदाउट क्वाड्रेंट ही सॉल्व हो जाएगा. कैसे? सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. So solution for example number 3. This problem will carry 2 marks. So what we'll do, let us consider the given expression. इसका value find करना है. So write down, consider the given expression is 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. बट tan थीटा का वैल्यू इज गिवन टू अस. tan थीटा का वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है. नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है. So what we'll do, we will divide this expression throughout by cos theta. ऐसा लिखो, dividing numerator and denominator by cos theta. दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे. So this will be further equal to what? Write down 2 sin theta plus 3 cos theta upon में cos theta आएगा. Please check. This will be divided by cos theta. चाहिए तो इसको ब्रैकेट में डाल दो ऐसा. And this will be also divided by cos theta. So 4 cos theta plus 3 sin theta divided by cos theta. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. दिस इज कंपल्सरी. ठीक है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप. क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे. अभी आपको पता है a प्लस बी अपॉन सी रहेगा. तो यू कैन राइट डाउन a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी ना. स्प्लिट होता है ना डिनोमिनेटर. तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है हमें. तो राइट डाउन, व्हाट विल दिस बिकम?
2 times of sin theta upon cos theta. I'm going stepwise, plus 3 times of cos theta upon cos theta. वैसे यहाँ पे होगा plus this will be 3 times of sin theta upon cos theta. स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर, स्प्लिट, ठीक है। राइट डाउन टिल हियर। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो अभी कर लो सिंप्लीफाई आगे। तो देयरफॉर राइट डाउन, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू व्हाट, तो ऐसे लिखो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या इक्वेशन उसने दिया था, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज फर्दर इक्वल टू व्हाट। ये सब इक्वली चल रहे हैं ना इसके, तो दिस इज इक्वल टू राइट डाउन 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, प्लस ये cos थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू tan थीटा। राइट डाउन, यहाँ पे ये cos थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 1 3 होता है। सॉरी, यहाँ पे ये cos थीटा कैंसिल हो गया तो 4 इंटू 1, तो वहाँ पे 4 हो गया। अब देखो tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, राइट डाउन, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस, अच्छा ये 1/2 इसको मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट डाल दो, प्लस 3 इंटू 1/2 इसको मल्टीप्लाइड है। तो वाई सो, राइट डाउन, गिवन tan थीटा का वैल्यू इज 1/2। या आप यही चीज आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, और फिर प्रॉब्लम को स्टार्ट करो। अब नहीं लिखा था तो बाद में लिखेंगे हम, तो चलो लेट्स सिंप्लीफाई। तो व्हाट विल दिस बिकम, तो ये 2 गया, 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस सॉरी 4 अपॉन 4 प्लस डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, तो दिस फर्दर बिकम्स 4 अपॉन 8 प्लस 3 11/2 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। नाउ ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो व्हाट विल दिस बिकम 8/11, 4 2 8, 8/11 इसका वैल्यू है। तो किसका वैल्यू है ये, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन इन द डिनोमिनेटर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू इज 8/11। प्रॉब्लम इज ओवर, राइट डाउन। यहाँ पे कहीं पे भी हमें क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan थीटा का वैल्यू दिया है एंड वी आर यूजिंग द रेशियो आइडेंटिटी, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा cos थीटा से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स दिख रहा है tan थीटा दिया है, तो tan इज sin अपॉन cos, इतना तो बेसिक नॉलेज हमें है, ठीक है ना। वही सेम चीज अगर cot थीटा का वैल्यू देता तो फिर हम sin थीटा से डिवाइड करते, बिकॉज cos अपॉन sin इज cot, ठीक है ना। तो रीड डाउन, दिस इज द प्रोसीजर इन्वॉल्व, प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी देखो ये टेक्सचुअल एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि जब प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही होगा, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इट्स एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। व्हाट इज गिवन, तो लिखिए गिवन cos थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा का वैल्यू इज -3/5 and theta lies in which quadrant, pi to 3π/2, means theta lies in third quadrant। ये देखो pi to 3π/2, तो लिखिए where theta lies in third quadrant,
ठीक है, cos थीटा पता है हमें, बट वी रिक्वायर sec tan cot cosec, राइट? तो sec थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से पहले, तो देयरफॉर sec थीटा का वैल्यू इज -5/3. पुट अ बॉक्स ओवर दिस. sec थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है. नाउ इफ आई फाइंड आउट sin थीटा, तो sin थीटा मिल जाएगा, तो cosec थीटा भी मिल जाएगा. sin थीटा मिल जाएगा तो उधर से tan थीटा भी मिल जाएगा. tan इज sin अपॉन cos ना, तो cos थीटा पता है, तो sin थीटा फाइंड कर लेते हैं. तो राइट डाउन, वी नो दैट, व्हाट वी नो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. therefore sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So that is equal to 1 minus cos theta का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो it is nothing but 9/25. So therefore from here sin square theta का value is 16/25. So therefore from here sin theta का value is plus minus 4/5. बट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट? चेक, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो लिखिए देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू इज -4/5. व्हाई? रीजन आपको पता है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो चलो साइन थीटा मिल गया, लिख लीजिए. यहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं. साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो कोसेक थीटा भी मिल जाएगा. तो राइट यहीं पे लिख लो, देयरफॉर कोसेक थीटा का वैल्यू इज -5/4. हाँ अच्छा, अभी इसके ऊपर बॉक्स नहीं डाला तो चलेगा, क्योंकि साइन थीटा का एज वैल्यू नहीं चाहिए अपने को. इस प्रॉब्लम में डोंट पुट अ बॉक्स ओवर दिस. इसको इवेल्युएट करने के लिए साइन थीटा फाइंड करना पड़ा, तो यू जस्ट पुट अ बॉक्स ओवर दिस. ये सारे वैल्यूज चाहिए हमें ना, सेक कोसेक. चलो नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ व्हाट डू वी वांट? tan एंड cot ना. so write down, we know that tan theta is sin theta upon cos theta. So that will be equal to sin theta का वैल्यू है -4/5 and cos theta का वैल्यू है -3/5. So therefore from here tan theta का वैल्यू is 4/3 पॉजिटिव. अब tan थीटा का वैल्यू 4/3 आ गया, तो therefore cot थीटा का जो वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. Check out, see, I've kept everything on the board right from the beginning. tan थीटा का रेसिप्रोकल cot है, cot का रेसिप्रोकल tan है. क्वाड्रेंट सिस्टम रखा है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज रखे हैं, स्टार्टिंग से बोर्ड पे है, ठीक है ना. तो रेफर करके लिखते जाओ आप. चलो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर. अब ये जो बॉक्स वाले वैल्यूज है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं. देयरफॉर राइट डाउन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स कोसेक थीटा का वैल्यू. कोसेक थीटा का वैल्यू इज -5/4. कॉट थीटा का वैल्यू इज 3/4 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू. सेक थीटा का वैल्यू इज -5/3 माइनस tan थीटा का वैल्यू इज नथिंग बट 4/3. तो इसको सॉल्व कीजिए आप. स्टार्ट डूइंग. तो ये तो बाय 4 है, -5 + 3 इज -2. ये अपॉन में 3 है, ये हो जाएगा -9. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 विद द माइनस साइन, और ये हो जाएगा -3. माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/6. बस हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. तो ये किसका वैल्यू है? दिस इज वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा.
इसका वैल्यू 1/6 आ गया, प्रॉब्लम इज ओवर। राइट डाउन। अब यहाँ पे ध्यान से करना है, जब रेसिप्रोकल लेते हैं ना यहाँ पे सॉल्विंग, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट है ना कुछ अलग अलग वैल्यूज लिखता है, 3/2, 2/3। अरे कैसे 3/2, 2/3? 1/2 अपॉन 3। यू सी दिस, a बाई बी, आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूँ, a बाई बी अपॉन सी ना। तो a बाई बी अपॉन सी क्या होता है? a अपॉन बी सी होता है ना। दिस इज द फंडा। 1/2 upon 3, so this will become nothing but 1/6 is the correct answer. हाँ ये करेक्ट है, बाकी जो कुछ भी मिला आपको वो सब रॉन्ग है। ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन दिस, we have completed this example. ठीक है, so we have completed exercise number 2.1 which was dependent on fundamental identity, and 2.2 के हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए and this was the extra problem. Now next time when we meet we will move ahead with the concept. Okay, so please note down this and then we stop for today.